All right, guys, very good evening to all. So, it's an hour class, probably may not take an hour. We'll be winding up soon. But this class will have two portions. One portion is where we talk about uh, calendars as a topic, and one more portion is where we discuss some questions on clocks that we left last time, right? That is yesterday's class. We had few questions on clocks, which we did not do. I had given you as an assignment. So we will discuss that and close the session. Calendar typically becomes a not so big topic, and it has three different styles of questions that you can expect, right? Before we get into those styles of questions, let's understand certain basics in terms of a calendar. What are the basics that you can learn, that we all know? I know that an year is can be classified as a non-leap year and a leap year. Okay? And how do I differentiate, or how do I recognize a non-leap year and a leap year? A leap year should be multiple of 4. That is, it should be divisible by 4 if it is not a century. I hope all of you understand that a century is an year which is a multiple of 100, right? So year 1900 or 2000, 2000, 2100. These are all multiples of 100, so they are called as century. Any year which is not a multiple of 100, and if it is a multiple of 4, then it is a leap year, right? But what happens if the year is a multiple of 100? If the year is a century, then it should be divisible by 400 for it to be a leap year. Okay, so leap year has two styles of years coming into picture. One is a year which is not a century. For example, the year that we currently are, 2024, right? This is not a century because it is not a multiple of 100. And this is divisible by 4. So, and that's why this is a leap year. While if I take the year 2000 or year 2100, they are all centuries, right? For century, I have to look at divisibility of 400. Now, since 2000 is divisible by 400, this is a leap year, while 2100 is a non-leap year. I hope all of you are clear. Coming to Yes. the non-leap year. So any other year which doesn't fall under the category of a leap year is a non-leap year, right? So I do not have to check. I'll just have to check whether it is divisible by 4 or not, right? Or divisible by 400 or not, depending on whether it is a century or whether it falls within a century. Further differences between leap year and non-leap year, I'm sure all of you know. A non-leap year has 365 days. This 365 days is equal to 52 weeks and 1 extra day, right? While a leap year has 366 days, which again contains 52 weeks, but now contains 2 extra day. Any doubts still here? If you have doubts, please raise your voice or raise your concern in the chat window. If you do not have doubts, then I'll move on, assuming all of you are writing down this information, right?
So a non-leap year has 1 extra day, a leap year has 2 extra days. Clear with this? Great. All right. Thanks to Ankita who switched on the video. Can I have everyone else also switch on the video, please? That will include me. So all of you, please switch on the video so that I understand that you guys are here. Right. Thanks, Chandana. Thanks, Aryan. Thanks, Lalita. Others, quickly. Thanks, Ahana. Thanks, Gargi. Okay. Please do ensure that you guys are writing down the information because it's very important for us to write down here. Now, apart from the 365, 366 days, the extra days, what is this extra days? इसको term होता है. For example, if I take a number like 27 and 27 को मैंने मान लो 4 से डिवाइड किया. So मुझे मिला 4 6 are 24 and बचा क्या? What extra is left over? 3. इस एक्स्ट्रा जो लेफ्ट ओवर है इसका टर्म होता है. ये क्या टर्म है इसका? इट्स कॉल्ड एज रिमाइंडर. करेक्ट. उसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा डेज बचा होता है जो तुम्हारे वीक्स में नहीं आते, राइट? 1 एक्स्ट्रा डे हो गया नॉन लीप ईयर के लिए, 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए लीप ईयर के लिए. ये एक्स्ट्रा डेज का टर्म क्या होता है? व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड एज? odd days. राइट. It's called as odd days. Days which is left over when you cannot convert them to weeks. Odd days is a term which is so very critical in solving questions on calendars क्योंकि पूरा क्वेश्चन कैलेंडर्स के odd days में ही काम होता है. ओके, चलो सबसे पहले मैं 2 सवाल लगाता हूं. I'll give you 2 questions and all of you I expect answer from all of you, right? I'm sure that many of you have already attended calendars as a class. तुमने ऑलरेडी कर रखा है कैलेंडर्स, ये रिवीजन की तरह होगा तुम्हारे. सो पहला क्वेश्चन सबके लिए वो है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन 2 successive leap years? 3. Sir, What is the 3. maximum number of years between 2 successive leap years? जिसने भी 3 बोला हो गलत. सक्सेसिव लीप ईयर का मतलब होता है एक ईयर के बाद दूसरा ईयर, राइट? सो जब 2 लीप ईयर आते हैं उसके बीच में मैक्सिमम कितने नॉन लीप ईयर मिलेंगे आपको, या कितने ईयर्स मिलेंगे आप? 4, sir. So 4 4 years. Sir, 6. हाँ, someone said 6. No. 4, sir. No. 2. 2 यार, 3 तो वैसे ही मिल जाते हैं ना नंदिनी. 24 हो गया लीप ईयर ये साल, 25 26 27 तो नॉन लीप ईयर है 3 साल, 28 आ जाते हैं उसके बाद विच इज अगेन ए लीप ईयर. Tanisha says 8. Okay. So the maximum number of years between 2 successive leap years is 7. Okay. ये तब होता है, this happens when we cross a century. This happens when we cross a century. Okay, for example, I'll give you an example. Let's take 2096.
Is 2096 a leap year? Yes, because it is divisible by 4. The next year is 2097, then it is 2098, then it is 2099, then it is 2100. Is 2100 a leap year, guys? Are you No, sure? sir. भव्या? नहीं ना, क्योंकि 2100 सेंचुरी है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो। सेंचुरी को 400 से डिवाइड होना है, ये ध्यान पे रखो। So 2100 is not a leap year. Next one is 2001, 02, 03 और 2104 जाके मिला मेरे को लीप ईयर। सो ये 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल मिल गए तो मुझे? 7. I get 7 years between 2 leap years. So that's the maximum. 3 years is the minimum. हमेशा हमें 3 मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम हमें 3 मिलता है। ये 7 मिलने के लिए हमें 100 साल जीना पड़े, right? So it's like that. Every 100 years, every 400 years, we will get this. Okay? चलो ठीक है. So that's a maximum. So odd days, I'm sure all of you have understood. It is the number of days that is left once you convert maximum number of weeks. Now, why is odd days important for us? Let's say someone tells me that, hey, today is Friday. Can you tell me कि 23 days के बाद कौन सा दिन आएगा? अब फ्राइडे से 23 डेज ऐड करने से अच्छा है मैं क्या करूंगा? व्हाट वी विल डू? वी विल Divide by रिमूव 7. हाँ, वी विल रिमूव 3 वीक्स, क्योंकि 3 वीक्स का मतलब है 21 दिन। एंड 3 वीक्स ऑल्सो मीन्स कि मेरा दिन जो है आज का फ्राइडे वो वापस मेरे हाथ में आएगा फ्राइडे, है ना? हर हफ्ते के बाद वापस वही वही दिन आएगा। सो आफ्टर फ्राइडे इफ आई टेक 3 वीक्स आई विल गेट बैक माई फ्राइडे। 3 वीक्स मतलब 21 डेज हाथ से चला गया। कितना दिन बचा मेरे पास? 2 डेज। If I add 2 days to Friday, it is going to be Sunday. Sunday. Okay? So to find odd days, you have to take the number of days given to you and divide by 7. Okay? Take the number of days with you, divide by 7. जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आता है वो कुछ नहीं, वो that is nothing but your odd days. Okay? All right. Now let me ask you another one. Why is Sunday called as a weekend? अब ये मत बोलना बिकॉज मंडे को वीक बिगिनिंग होता है, ठीक है? बट वाई संडे कंसिडर एज ए वीकेंड? चलो सैटरडे को भी मिला लेते हैं, बट वाई संडे कंसिडर एज ए वीकेंड? Sir, because a week consists of 7 days, हाँ, and Sunday is the the last day of a week. So it is. तो किसने बताया कि संडे लास्ट डे होगा? मैं वेंसडे टू वेंसडे क्यों नहीं किया? मैं वेंसडे टू ट्यूसडे नहीं किया क्यों? मेरे को ट्यूसडे अच्छा नहीं लगता। ट्यूसडे को मैंने लास्ट डे क्यों नहीं बनाया? मैंने संडे को ही लास्ट डे क्यों बनाया, या संडे को ही मैंने वीक एंड क्यों रखा? अच्छा, इसीलिए क्योंकि जब कैलेंडर बनाया गया था, व्हेन कैलेंडर वाज मेड, it was considered that the first day of life on earth was on a Monday. ठीक है? फर्स्ट, अब जब 7 दिन डाले थे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये माना गया था कि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ वाज ऑन ए मंडे। इसीलिए वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाके संडे खत्म होता है, तो संडे को छुट्टी होता है और मंडे से वापस शुरू हो जाता है अपना कैलेंडर या वीक। ठीक है? हाँ, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज ला सकते हैं। कोई बोलेगा जीसस का लेके आ सकते हैं, कोई कोई भी एंगल ला सकता है, बट बेस वन ऑफ द बेसिस इज दिस। ओके, लेट्स नॉट, वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जानकारी के लिए बताया। ओके, नाउ लेट्स कम टू different styles of questions. The first style of a question is,
where I'll say डेट क्या आज का 26 Jan 2024 is a Friday. 15th August 2025 is going to be what day? This is one style of a question. I hope all of you are clear with this style. Second style of a question is 15th August 1947 was what day? Second style of a question. Third style of a question is when can 2023 calendar be reused? Third style of a question. पहले स्टाइल में द फर्स्ट स्टाइल क्वेश्चन में आई हैव गिवन यू अ रेफरेंस पॉइंट जो कि है 26 जनवरी 2024। इस रेफरेंस पॉइंट को लेके हम अगला जो डेट दिया जाता है वो ढूंढेंगे। अब याद रखना कि ये रेफरेंस पॉइंट रियल में भी रियल अकॉर्डिंग टू रियल कैलेंडर सही हो सकता है या अकॉर्डिंग टू रियल कैलेंडर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। हो सकता है मैं लिख दूं 26 जनवरी 2024 वाज ए मंडे, तुम्हें ढूंढना है कि 15 अगस्त 2025 क्या है। अब कोई आके मेरे से ये नहीं बोलता कि सर आपने मंडे गलत दिया था, वो तो एक्चुअली फ्राइडे था, फर्क नहीं पड़ता, राइट? इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीथिंग। रेफरेंस पॉइंट से लेके तुम्हें जो डेट दिया गया है वो ढूंढना है। दिस इज फर्स्ट स्टाइल ऑफ ए क्वेश्चन विच अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो ये डेफिनेटली करो, डेफिनेटली करो। सेकेंड पॉइंट स्टाइल ऑफ ए क्वेश्चन है कि जहां पे रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं, you have to find the real day of the given date. ये पूरा जो सेकंड स्टाइल क्वेश्चन है दिस कंप्लीटली वर्क्स ऑन ओरिजिन ऑफ कैलेंडर। ओरिजिन ऑफ कैलेंडर का मतलब है जिस तरह से कैलेंडर को बनाया गया उसी बेसिस पे वर्कआउट होता है ये पूरा पॉइंट टाइम, राइट? अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसको या तो मत बनाओ या लास्ट ऑप्शन में रखो। ये आपका फर्स्ट प्रियोरिटी या फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दैट इज फर्स्ट प्रियोरिटी फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है आपने ये सवाल देखा और आप बनाने बैठ गए, यू कैन नॉट डू दैट। आपने ये सवाल देखा, आपने दिमाग में रखा और आप आगे बढ़ते गए। जब आपके एंड में एग्जाम के एंड में टाइम बचा हो तब आप आके वापस इस सवाल पे आना, तब तक इस सवाल पे कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल, ठीक है? तीसरा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कैलेंडर वेर यू आर मैचिंग द डेज एंड मैचिंग द डेट्स। अब ये सवाल भी जब आता है तुरंत के तुरंत बनाया जाना चाहिए, यू शुड डू इट इमीडिएटली। Okay, so the first and the third are the questions which you should do, while the second is a question which you should avoid and do it in the end. So I'll teach all three methods. I'll teach all three of them. आपको डिसीजन करना है एग्जाम के टाइम पे। So पहला सेशन ले लेते हैं, पहला वाला सवाल, which is the easiest one. When a reference point is given, 26 Jan 2024, which is given to me as Monday, मान लो मंडे दिया जाता है, एंड आज डेज पूछा है 15th अगस्त 2024 या 2025 कौन सा दिन? So what is the first step? First step is always to find number of odd days. पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ ऑड डेज ढूंढना, जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2025। नाउ ऑड डेज दो तरीके से ढूंढा जा सकता है। एक, या तो आप हर महीने का लेते जाओ जो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू कैलकुलेट। So what I will do rather is I will say 26th Jan 2024 से लेके 26th Jan 2025 हो गया एक साल।
अब ये एक साल लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? सर लीप ईयर है। लीप ईयर है, राइट। क्योंकि फरवरी 29 2024 का आपके अकाउंट में आ रहा है। आप डिसाइड कब करोगे, कैसे करोगे कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? डिसाइड तब होता है जब फरवरी 29 आपके अकाउंट में आता है कि नहीं आता। ठीक है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर इट इज ए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इफ आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम लेट्स से 27 Feb 2024 से लेके 1 Jan 2025, या 27 Feb, वही लेते हैं, एक साल ले लेते हैं, Feb 2025, ये बना लीप ईयर क्योंकि 29 Feb मेरे अकाउंट में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यही लिया 1 March 2024 को लेके, मैंने लिया 1 March 2025, तो इसमें ये लीप ईयर नहीं है। दिस इज नॉट ए लीप ईयर क्योंकि 29 Feb आपका गुजर गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपके लीप ईयर काउंट और नॉन लीप ईयर काउंट सिर्फ 2024 के वजह से नहीं होता, वो 29 Feb के वजह से भी आता है। अगर 29 Feb खत्म हो गया तो आपको लीप ईयर लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो दिन चला गया है जो आपको इम्पैक्ट करता है, राइट। द वन दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू हैज ऑलरेडी गॉन, सो डू नॉट टेक दैट ईयर एज ए लीप ईयर। क्लियर विद दिस ऑल ऑफ अस? यस। So now I take from 26 सर Jan 2024 to 26 Jan 2025. Okay, 1 year है एंड दिस इज लीप ईयर। लीप ईयर में हमने कितना एक्स्ट्रा डेज है बोला था? लीप ईयर में होता है 2 एक्स्ट्रा डेज, तो ये हो गया 2 ऑड डेज। अब हम पहुंचे हैं 26 Jan। अब लेते हैं जैन में। जैन के कितने दिन और बचे हुए हैं हमारे पास? 5 दिन, क्योंकि 26 कब तक ले लिया है, 31 डेज होता है जैन में, 5 दिन और बचे हुए हैं जैन में। फेब में कितने दिन बचे? अब कौन से साल का फेब है? 2025 का। 2025 का फेब मतलब 28 दिन। 28 दिन मतलब सीधा 4 हफ्ते। तो मतलब फेब में आपके पास कोई दिन नहीं बचा, क्योंकि हफ्ते खत्म हो गए, राइट। मार्च, जो भी महीना है जिसमें 31 दिन है, वहां पे 3 दिन आपके हाथ में बचेगा। जो भी महीना है जिसमें 30 डेज है, उसमें 2 दिन आपके हाथ में बचेगा, राइट, बिकॉज एवरी मंथ हैज 28 डेज एंड दिस 28 विल गो एज वीक्स, है ना। तो वो आपको हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रख लो कि अगर एक महीने में 31 डेज है, देन यू विल हैव 3 ऑड डेज, एंड इफ ए मंथ हैज 30 डेज, यू विल हैव 2 ऑड डेज। सो अप्रैल में हो गया 2, मई में हो गया 3, जून में हो गया 2, जुलाई हो गया 3, अगस्त। अभी आपको आपका डेट पूछा है 15 अगस्त। ओके, आदित्य आपको अनम्यूट करके बताना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ सर मैंने अभी बोला था सर, जैसे कि आपने अभी इससे पहले जो फरवरी का बताया था, 29 का आपने बताया था कि जो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई कोई ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। रहा। मुझे हाँ, वो चीज़ समझ नहीं आई। अच्छा। तो आदित्य, सबसे पहले आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है, सबके लिए। एक बात बताओ, लीप ईयर जब आता है तो ऐसा कौन सा महीना है जो इम्पैक्ट करता है, जिसका इम्पैक्ट होता है? सर फरवरी। फरवरी पूरा महीना इम्पैक्ट होता है क्या? सर फरवरी में एक डे, पूरा एक दिन इम्पैक्ट होता है, वो दिन कौन सा एक है? सर 29 होता है, क्योंकि ट्वेंटी यूजुअली नाइन्थ फरवरी होता में। है ना। अब आदित्य, हम गए 27 Feb से लेकर 2024 से लेके Feb 27 2025। अब जब हम ये Feb 27 से चले हैं, क्या हमें Feb 29 इस जर्नी में मिलेगा, इस दौरान मिलेगा? सर आ सकता है 2024 का। सोचो, सकता है कि आएगा? 27 Feb 2024 के बाद अगला आएगा दिन कौन सर, सा है? आएगा। पल बिल्कुल आएगा। 27 Feb के बाद 28 Feb आ गया, 28 Feb के बाद 29 आएगा ही आएगा।
है ना? आ सकता है तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो जरूर आएगा भाई, राइट? यस सर। राइट, ऐसा ही आ सकता है ऑप्शन तभी हो सकता है जब मैं 28 को सो गया और 29 को उठा ही नहीं और 30th को उठ गया, मैं फर्स्ट मार्च को उठ गया, तब वो आके चला भी गया, मेरे को पता भी नहीं चला। यही सीन होता है जब आ सकता है, वरना तो पक्का आएगा वो, हर किसी के जिंदगी में आएगा। चलो, तो जब 29 फेब यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो मतलब ये जो साल हो गया आदि, वो हो गया लीप ईयर। समझ गए? यस सर। क्योंकि 29 फेब तुम्हारे हाथ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये दूसरा वाला लेते हैं, 1 मार्च 2024 से लेके 1 मार्च 2025 तक। अब इसमें 29 फेब आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। बिल्कुल मार्च नहीं से आएगा। स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मार्च से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब फेब्रुवरी नहीं आएगा तो क्या तुम्हारा लीप ईयर का कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं सर। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा नॉन लीप ईयर। समझ में आ गया अभी? यस सर, अब आ गया है समझ। बिल्कुल, चलो ठीक है। तो उसी तरह से जब हम 26 जनवरी 2024 से लेके 26 जनवरी 2025 व्हेन वी मूव, जब हम गए, तो February 29 इस दौरान हमें मिला, मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे ही February 29 मिला, ये साल बना मेरा लीप ईयर। ओके? और ये साल लीप ईयर बनते ही, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। तो 2 एक्स्ट्रा डेज मेरे हाथ में आ गए। अब मैंने सारे एक्स्ट्रा डेज लिए सारे महीने के। ओके? अगर Sir, किसी को, here, हाँ प्लीज, हाँ here चंदना। it's should be like 1 odd days, no sir, 1 odd day. Then what's the reason of having 2 odd days? इन ए लीप ईयर चंदना, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? 366. इन 366 days, हाउ मेनी वीक्स डू यू फाइंड? 53. नो, एवरी ईयर हैज ओनली 52 वीक्स। Okay. 52 वीक्स मतलब हाउ मेनी डेज आर 52 वीक्स? 364 days आर 52 वीक्स। Okay, sir. 52 into 7. Okay. So when you have a non-leap year, Chandana, you have 365 days. So that's why that 365 days will have, written it here. Yeah. That's why that 365 days will have 52 weeks and 1 extra day. But when you have a leap year, because you have 366 days, it will have 2 extra days. Clear? Yes, sir. Okay. So this year, which we have, will have 2 odd days. Then comes the other months, Jan, Feb, March, April, all the way. Now, when I come to August, we are not bothered about the entire 31 days of August, because my question is asking only till 15th of August, which means I am bothered only of 15 days. 15 days again will have 2 weeks. 14 days goes as 2 weeks. Left over, 1 odd day. So in total, how many odd days do I have? The 2 in the top, 2, plus 5, 7, plus 3, 10, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, that's 20, plus 1, which is 21. 21 odd days means exactly 3 weeks, and again you are left with no odd days, because 21 odd days means 3 weeks will take care and you are now left with no odd days. What does no odd, zero odd day का मतलब क्या होता है? What does zero odd day mean? Zero odd days mean that your day is going to repeat. That's what it means. So if 26th January 2024 was a Monday, then 15th August 2025 is also going to be a Monday. Sir, I didn't get. Can you please explain it again? That zero odd day कैसे? Total 21 odd days आया फिर zero कैसे? Total 21 odd days, ये समझ में आ गया भव्या? Yes, sir. चलो, जैसे ही तुम्हारे ऑड डेज 7 से बढ़ जाते हैं, क्या तुम्हें उसे हफ्तों में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes, राइट। yes. तो 21 ऑड डेज का मतलब हो गया 3 वीक्स। जैसे ही ये 3 वीक्स में कन्वर्ट हो गया, क्या आपके हाथ में कोई भी ऑड डे बचा है? कोई भी एक्स्ट्रा दिन बचा है अभी हाथ में? No, नहीं sir. बचा है। तो आपके हाथ में 0 एक्स्ट्रा डेज है। ठीक है? 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है?
कि आपका जो डे है आप उसी दिन में हो। 0 एक्स्ट्रा डे का मतलब है कि आपका जो आपके हाथ में जो दिन है उसी दिन में हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू गो अहेड बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा डे। So what day were you in? You were on Monday, है ना? Because Monday was given to you. So you are what day you will be in? You will still be on Monday because there is no extra day in your hand. So अगर आप देखोगे रियल कैलेंडर में, तो 15th August 2025 is going to be the same day as 26 Jan 2024. मतलब आज का जो दिन है वही दिन आपका 15 अगस्त अगले साल का है। देख लें एक बार, जिसका कैलेंडर है देख लो, जिसका कैलेंडर नहीं है देख लेते हैं। Sir, हाँ, sir, could you explain how February has 0 odd days? Will it not be 1? Yes, sir. ओके। अगस्त 15, देखो अगस्त 15 कौन सा दिन आ रहा है? फ्राइडे। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी रीड। Who asked that February has 0 days? Sir, Mika Vinaya. Okay. Why do you say February will have 1 odd day? Sir, because 29 days, so 28 will go off in weeks. Which February has 29 days? A leap year. No, which year? Which year? 2024. But have we already jumped from 2024 to 2025? Yes, sir. So now which February we are talking about? Okay. The year 2025, because I have already crossed that 2024 February, correct? Yes, sir. So now in 2025, February will have only 28 days. Yes, sir. So that's why 0. Okay, sir. Right. Anyone else who has this doubt? Okay. No. Anyone who has any other doubt? Sir, I just forgot that how you calculated this odd day for every specific month like January. जनवरी में कितने But दिन होते हैं आदित्य? sir, January में 31. 31 डेज। पहले 31 डेज को 7 से डिवाइड करो। क्या रिमाइंडर आता है आपको? रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना आता है? 4. सो रिमाइंडर, तुम क्वेश्चन बता रहे हो वापस से, रिमाइंडर बताओ कितना आता है? रिमाइंडर मतलब जो बचा। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये जो अचार आता है ये क्वोशंट होता है। कितना बचा हाथ में, वो रिमाइंडर होता है। 3. वो होता है ऑड डेज आदित्य। Okay. ठीक है, तो ये हर बार करने से अच्छा आप ये याद रख लो कि जो महीने में 31 डेज होते हैं उस महीने में 3 ऑड डेज रहेगा आपके हाथ में, और जो महीने में 30 डेज होता है उस महीने में आपके पास हाथ में रहेगा 2 ऑड डेज। क्लियर है? Okay, sir. बार बार डिवाइड करने से अच्छा है ये यार, क्योंकि हर महीने में, फरवरी छोड़ के पूरे साल में, हर एवरी मंथ हैज ईदर 31 डेज और इट हैज ईदर 30 डेज। So rather than reinventing the wheel every now and then, you remember that ऐसा wheel ऐसा ही बनता है, बस सिंपल। ओके, चलो, ये हो गया एक स्टाइल, पहला स्टाइल क्वेश्चन जहां पे आपको रेफरेंस पॉइंट दिया है और आपको दूसरा डेट देके मांगा जाता है कि कैसे करना है। Sir, ओके, हाँ गोपिका। sir, could you explain the last part of this answer, please? The last part, which part you? The Sir, adding. from after we found that there are 0 days, after that, I didn't understand. Okay, so Gopika, what does 0 extra days mean? 0 extra days mean that whatever day is given to you, that day will remain with you. You cannot go ahead. Okay. Okay, sir. So in the question, what day was given to us? It was given that it's a Monday. So 0 odd days means that you will remain on Monday. If you had 1 odd day in your hand, what you would have done? You would have added 1 day to Monday. That means you would have got Okay, sir. Tuesday. Got it? Yes, sir. Okay. So keep this, and that's enough for us to solve questions on calendars.
Now let's Sir, come I to have the, one doubt. yeah, Aditya, tell me. Sir, as you said that for the January month, the number Hmm. of days will be 31. So, sir, Hmm. when we calculated the number of odd days for the January month, it's coming Hmm. 5. So, I just wanted to check that thing with you. And for सोचो, the बताओ February, क्यों? अच्छा, बताओ क्यों? क्यों 5 आया? सर 3 तो वैसे ही होते हैं 31st के लिए। हाँ, तो 2 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, बोनस। सर नहीं वही ना, मुझे ऐसा समझ नहीं नहीं होता है। आया। चलो ठीक है, कोई और समझाएगा आदित्य को क्यों क्यों 5 आया? भव्या? Sir, I also forgot. एनीवन Can एल्स? you just recall? सर क्योंकि हम हाँ 26 आर्यन, बताओ। सर एक साल का हम लोग काउंट कर चुके हैं 26 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2025 तो फिर हाँ 2025 से जैन में 5 डेज ही बचेंगे। आदित्य, 26 जनवरी 2024 से लेके 26 जनवरी 2025 तक हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन काउंट कर दिया है। तो आपके जनवरी 2025 के 26 दिन तो चले गए हाथ से। अब 31 दिन में कितने बच्चे हैं आपके हाथ में? हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन योर हैंड? 5 दिन ही ना आदित्य जी? यस सर, यस सर। वो 5 दिन लिया है हमने, समझ रहे हो? हम पूरा जनवरी नहीं ले रहे हैं। अब जनवरी आ गया, कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जनवरी लेंगे ना। जितना दिन है हाथ में उतना ही दिन लेंगे। ओके सर। भव्या, समझ में आया अभी? आ गया सर, भूल गई Right. थी। आ गया याद। Right. So you will always take the number of days left in your hand, not the number of days that exist in that month. ठीक है? जितना तुम्हारे हाथ में है वो लोगे। अब ऐसा है कि बैंक जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, तो तुम्हारे अकाउंट में कितना है उतना ही निकालोगे ना, बैंक में जितना उतना थोड़ा ना निकालोगे। तो वही है लॉजिक। So how much ever is there in your hand is what you pick, not how much is there in that month. Okay. Next comes when I have to match the calendar. Matching the calendar. Matching the calendar का मतलब होता है when I have to reuse. Okay. मैचिंग द कैलेंडर का मतलब होता है कि हर दिन एक कैलेंडर का हर दिन दूसरे कैलेंडर के दिन के साथ मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जैन, कोई भी साल का 1 जैन मंडे को शुरू हुआ, तो अगले आने वाले कोई एक साल में 1 जैन मंडे को शुरू होगा, तब वो कैलेंडर मैच होता है। ठीक है? कैलेंडर मैचिंग द कैलेंडर का मतलब वो होता है कि आप कैलेंडर को रीयूज कर सकते हो कोई भी बिना झिझक के, बिना दिक्कत के। ओके, सर तो ये, डेट एंड डे फेस्टिवल के भी? हाँ, नहीं नहीं, फेस्टिवल तो थोड़ा, फेस्टिवल नंदनी, फेस्टिवल कहाँ से आता? फेस्टिवल थोड़ा कैलेंडर के नेम पे होता है। फेस्टिवल तो हम लोग कुछ और चीजें देख के डिसाइड करते हैं ना। फेस्टिवल कैलेंडर कुछ डेट जैसे August 15th या October 1st, जो जो डिक्लेयर्ड हॉलीडेज या डिक्लेयर्ड डेट्स होते हैं, वो उसी दिन रिपीट होंगे, राइट? जैसे, तो लेट्स ओके लेट्स सर। लेट्स पुट इट इन दिस वे। मान लो कि मेरे हाथ में अभी 2023 का कैलेंडर है, फिजिकल कैलेंडर। आपको लगता है कि कैन आई यूज दिस कैलेंडर इन फ्यूचर, और डू यू थिंक दैट आई हैव टू थ्रो दिस कैलेंडर? सर 2051 में सेम कैलेंडर रिपीट होगा, 2051 में? क्योंकि एवरी 28 ईयर्स बाद कैलेंडर रिपीट करता है। सही कहा, लेकिन गलत डेटा के लिए कह दिया भव्या। ठीक है? 28 ईयर्स का कैलेंडर रिपीट सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर्स के लिए होते हैं। ओके, सारे साल के लिए नहीं जोड़ा जाता। ओनली, जैसे आगे अगर आपके पास अभी एक कैलेंडर है जो 2024 का कैलेंडर है, इट कैन बी रीयूज्ड व्हेन आई ऐड 28 ईयर्स। यानी कि दिस कैलेंडर कैन बी रीयूज्ड इन द ईयर 2052। You can add 28 years to a calendar only if the calendar is a leap.
लेकिन 2023 इज नॉट ए लीप ईयर। इनफैक्ट अगर मैं 2025 लू या 2026 लू, ये तीनों लीप ईयर नहीं। 2 मिनट देता हूं हर किसी को, जस्ट टेल मी व्हेन डू यू थिंक आई कैन यूज दिस कैलेंडर्स। After 4 years. नहीं, After 11 years. ऑल ऑफ देम। ओके, 2023 का कैलेंडर आई कैन यूज आफ्टर 11 years. ओके, 2023 का कैलेंडर आई कैन यूज आफ्टर, एग्जैक्टली आफ्टर 11 years. 11 years के अंदर आई कैन नॉट यूज दिस कैलेंडर। ठीक है, 11 years के अंदर मैं इसे कैलेंडर को यूज नहीं कर सकता। मतलब ये कैलेंडर यूज होगा आप 2034 में, 25 का। ट्वेंटी फाइव का कैलेंडर यूज हो सकता है एग्जैक्टली होगा या एग्जैक्टली 6 years के बाद। यानी कि 2025 अगर मेरे पास हाथ में कैलेंडर है तो वो यूज होगा 2031 को, एग्जैक्टली 6 years के बाद। ओके, इसके प्रूफ्स या इसका डिराइवेशन का जरूरत नहीं है। अगर ये डेटा आपके हाथ में है तो काफी आसान हो जाता है। 2026 एनी आइडिया? 1 year. हाँ, 32 में यूज नहीं हो सकता। 6, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 में यूज नहीं हो सकता। 30, so 32, 33, 34, 35, 36, 37, 11 years. Nine. So 2026, it's someone I saw has said again after 11 years. So 2026 calendar can also be used after 11 years, which is 2037. Okay? तो इसको याद रखने का एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का इंफॉर्मेशन निकालते हैं। चलो, इंफॉर्मेशन आया ऐसे, ईयर, क्या हुआ? आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो Yes. गया यहाँ से। रुक जाओ 1 मिनट। ओके, आई हैव टू लॉग आउट एंड लॉग कम इन बिकॉज मेरा स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हाँ, वापस आ गया, चलो।
So इसका if we are writing it down, we can write it down this way, guys. I'm talking about 2023. If you look at this year 2023, it is अच्छा, इसको आसान से ऐसे डाल देते हैं. If an year is a multiple of 4, then add 28 years. Okay, if an year is a multiple of 4, add 28 years. जैसे लीप ईयर हो गया, लीप ईयर सारे आपके मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो आप ऐड करोगे 28 years. ओके, कहा सब गायब हो गए, वीडियो ऑफ हो गया सबका. चलो, if an year is one more than a multiple of 4, 4k plus 1 का मतलब है 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा. कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लीज, 4k का मतलब 4000 नहीं है, 4k का मतलब है 4 के मल्टीपल से 4 का मल्टीपल, और 4k प्लस 1 का मतलब है 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा. जैसे 2025, अगर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है वो साल, उसको आप 6 ऐड करोगे. You will add 6 years to it. If the year is 2 more than 4's multiple, if the year is 2 more than 4's multiple, add 11 years to it. And the same goes if the year is 3 more than 4's multiple, then again add 11 years to it. अब याद रखना कि 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा का नेक्स्ट होता है वापस 4 का मल्टीपल. ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2024 है, ये 4 का मल्टीपल हो गया, इसको 28 साल ऐड कर दो. अगर 2025 है, ये 4 का मल्टीपल है कि 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, मतलब रिमाइंडर आपको एक मिलेगा, 4 से डिवाइड करोगे. करेक्ट आदि. तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको एक मिलेगा. तो रिमाइंडर जैसे ही एक मिलेगा, आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा. 2026 क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा. और 2027 क्या होगा, ये भी 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा. ये दोनों साल आ गए तो आप कितना ऐड करोगे, 11 ईयर्स. इसके बाद कौन सा साल आएगा, 2027 के बाद कौन सा साल आएगा, वापस लीप ईयर आएगा, है ना, वापस लीप ईयर आएगा 2028. तो मतलब वापस 4 का मल्टीपल आएगा. तो एक नंबर 4 का मल्टीपल हो सकता है 4 के मल्टीपल से 1 मोर देन 4's मल्टीपल, 2 मोर देन 4's मल्टीपल, या 3 मोर देन 4's मल्टीपल. आपको ऐड करना है बस ये 28 ईयर्स, 6 ईयर्स, 11 ईयर्स एंड 11 ईयर्स. बस यही करना है आपको. ऑलराइट, चलो हम यहाँ पे आज रोक रहे हैं. मैं बीच वाला सवाल नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को अभी 5 मिनट में एक और क्लास शुरू हो जाता है, तो हम यहीं पे रोकेंगे. आई वॉन्ट यू गाइज टू डू अ थिंग, दिस इज फॉर ऑल. प्लीज डोंट एग्जिट. 1 मिनट रुको, एग्जिट मत करो क्लास को. मैं कुछ इंफॉर्मेशन या अनाउंस करूंगा. ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स, कैलेंडर्स. ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो सॉल्व करो. मंडे को आई एम गोइंग टू गिव ऑल ऑफ यू ए स्मॉल टेस्ट ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. ठीक है, 5 सवाल क्लॉक्स, 5 सवाल कैलेंडर्स. ये 10 सवाल बनाने के बाद हम इस 10 सवाल को डिस्कस करेंगे. ये 10 सवाल का टाइमिंग रहेगा. ये 10 सवाल बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट दूंगा. सो 20 मिनट्स में 10 सवाल बनाने आप. ओके, and then we will discuss those questions. That is going to be the Sunday's class. Sorry, Monday's class. Monday का क्लास. So आपके पास 2 दिन है ये टॉपिक को कवर करने के लिए, लेकिन पूरा 2 दिन मत लगाइए क्योंकि आपके बाकी टॉपिक्स भी हैं करने के लिए, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स. So plan accordingly, prioritize your entire work. सर हाँ कविता, I think you would have some material from shared by Gaurav sir. If not Gaurav sir, या किसी से पूछ लो क्लॉक्स और कैलेंडर्स के मटेरियल, दे विल बी एबल टू गिव यू सॉफ्ट कॉपी. मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है नहीं.
सर मुझे आपसे पूछना था कि अभी तक जैसे मैं अभी 2-3 दिनों से ही और जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं या फिर जो आपकी लाइव होती हैं वो देख रहा हूँ। तो ओके। सर कोई ऐसा डे है क्या जिसमें आपने ब्लड रिलेशन वगैरह भी पढ़ाया हुआ है? हाँ या बिल्कुल तो फिर पढ़ाया है। उसकी बिल्कुल पढ़ाया, ब्लड रिलेशन पढ़ाया तो हुआ सर मैंने। उसकी वीडियो अगर मेरे को चाहिए तो मुझे कहाँ पे मिलेगी? आपको कनेक्ट कौन कर रहा है? आपको लिंक कौन भेज रहा है ये क्लासेस के? सर मैं ID 2401 वाले ग्रुप में हूँ, ऑफलाइन बैच से दिल्ली। हाँ तो वहां पे आपको जो लिंक भेज रहा है ना क्लास के, हम्म। आपके ग्रुप में देखो गौरव सर, या पीयूष सर है हमारे वो। हाँ सॉरी। पीयूष सर ही हमारा वो करते हैं इधर का। अच्छा पीयूष सर करते हैं, तो पीयूष सर से ही बोल दो आप कि मुझे ब्लड रिलेशन का वीडियो एक्सेस चाहिए, है ना? या यहाँ पे एक और मैडम है, वेट, अनुषा, आर यू देयर? आर यू एबल टू हियर अस? Yes, sir. Can you take the student's ID and help ask Ashwini sir or Gaurav sir to send that link, recorded classes का link? Yes, sir. या आप आदित्य, आप ये अनुषा राय जो नाम दिख रहा है मैडम का, इन मैम को आप अपना आईडी मैसेज कीजिए, ओके सर। राइट, और ये आपको भेज देंगे इंफॉर्मेशन, है ना? सर वो मैम का नंबर ग्रुप में दे दीजिए ना। मैम का नंबर मैं थोड़ा ना दे सकता हूँ करके जी, मैम का नंबर मैम ही देंगी ना। मैं नहीं दे सकता I'll ना ग्रुप में। I'll post my number. हाँ। ओके मैम। All right, guys. So I'll see you on Monday. Meanwhile, whatever discussions you want to do with ma'am, Anusha ma'am is anyway there. She'll be able to help. She'll help you accordingly. So please do the needful. थैंक यू सर। I have posted my number. थैंक यू सर। यस मैम।